This conference will now be recorded. So in the last lecture of budgeting, we learned the basic concepts of budgeting, that what is a budget and what is the process of preparing budgets and what are the different styles of preparing budget. And then we were learning the process of preparing the master budget. The master budget comprises cash budget, budget profit statement, and budget balance sheet. And before we prepare master budget, we have to prepare so many small functional budgets starting from sales. And why do we start from sales? Because sales generally is assumed to be the principal budget factor. That is the limiting factor. So we start from sales, and in the previous class we learned how to prepare a sales budget. From sales budget we prepare production budget, and then from production budget we prepare the other budgets. So in the last lecture we covered up till direct material budget. So in this lecture I will cover the remaining budgets. We will learn how to prepare direct labor budget. We will learn how to prepare manufacturing overhead budget. We will learn how to prepare selling and administrative budget, ending stock budget, and then most importantly, we will learn how to prepare cash budget, budgeted profit statement, and budget balance sheet. So let me move on to the labor budget first, because this is where we're going to start this lecture. So as you know कि हम एक क्वेश्चन फॉलो कर रहे हैं और उस क्वेश्चन का डाटा आपके साथ शेयर किया हुआ एज अ वर्ड फाइल एंड दैट इज अवेलेबल इन द बुक एज वेल. सो जैसे ही हम कोई नया बजट बनाते हैं वी पिक्ड द रेलेवेंट डाटा फ्रॉम दैट क्वेश्चन और वो डाटा आपको यहाँ पे स्लाइड पे नजर भी आता है. तो इफ समबडी इज कंफ्यूज्ड कि ये कहाँ से हमें पता लगेगा, तो डेफिनेटली दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. वी कैन नॉट मेक अ लेबर बजट अनलेस आपको ये बताया जाए कि एक यूनिट पे स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ लेबर कितने हैं. यहाँ पे हमें एक चीज बताई गई है and this can be denoted as standard hours. At Royal, each unit of product requires 0.05 hours of direct labor. एक यूनिट बनाना है तो हमें 0.05 आवर्स चाहिए. ये स्टैंडर्ड्स कैसे सेट होते हैं, हमारा अगला चैप्टर है जिसमें हमने स्टैंडर्ड सेटिंग से रिलेटेड भी पढ़ना है. बट वी आर प्रोवाइडेड विद अ स्टैंडर्ड कि एक यूनिट कितने घंटे में बनता है. उसके बाद कंपनी की पॉलिसी भी दी हुई है that the company has a no layoff policy and all employees will be paid for 40 hours of work each week. अगर काम 40 आवर्स से कम है, अगर लेबर ने काम 40 आवर्स से कम किया है तब भी हमने 40 आवर्स पे करने, और लेबर ने अगर 40 आवर्स से ज्यादा काम पे किया है तो हमने ज्यादा आवर्स पे करने. इन एनी केस वी हैव टू पे देम 40 आवर्स ऑफ वर्क फॉर ईच वीक. हम ले ऑफ नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते लेबर को कि काम कम है तो कुछ को हम निकाल दें. In exchange for the no layoff policy, workers agreed to a wage rate of 10 per hour, regardless of the hours worked. अब चूंकि एक गारंटी आपने वर्कर्स को दी है कि हम उनको नहीं निकालेंगे, अगर कभी आप वर्कर्स को ओवर टाइम करना पड़ता है, like if in a particular period the hours required are more than 40, तो जो एक्स्ट्रा आवर्स हैं तो लेबर उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लेती जिसे ओवर टाइम कहते हैं, तो वो वही रेट लेगी जो रेट आपका नॉर्मल आवर्स का है. नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. For the 3 months, the direct labor workforce will be paid for a minimum of 1500 hours per month. तो जितने भी आपके देखें पिछले उसमें उसने कहा था कि एक लेबर को हमने गारंटी किया है
एक हफ्ते में 40 आवर्स का। तो अब वो ट्रांसलेट होता है इन टर्म्स ऑफ टोटल लेबर, जितनी भी आपके पास अवेलेबल है, जितने भी वर्कर्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो वो टोटल आवर्स 1500 पर मंथ बनते हैं। इसका मतलब है कि उस मंथ की जितनी भी प्रोडक्शन है उसके लिए जितने भी आवर्स चाहिए हमने मिनिमम 1500 आवर्स पे करने हैं। नाउ हैव अ क्विक लुक एट द बजट। तो प्रोडक्शन का डेटा पिछले बजट से आ रहा है। हमने जब सेल्स की बेसिस पे प्रोडक्शन के यूनिट्स निकाले थे, तो 26,000 units were to be produced in April and 46,000 units to be produced in May and 29,000 units to be produced in June. स्टैंडर्ड आवर्स अभी आपको बताए गए कि एक यूनिट पे 0.05 आवर्स लगते हैं। सो आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गए लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, that in order to produce 26,000 units we need 1300 hours in April, 2300 hours in May, 1450 hours in June. ये तो हो गए आवर्स रिक्वायर्ड, लेकिन हमने गारंटी कितने की है? हमने कहा जी चाहे आवर्स कम हो ज्यादा हो, कम से कम हम 1500 की पेमेंट करेंगे। सो गारंटीड इज 1500। अब अप्रैल में चूंकि आवर्स रिक्वायर्ड कम थे और हमने गारंटी ज्यादा किए हुए हैं, तो हम गारंटीड पे करेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 हमारी लेबर कॉस्ट 15,000 होगी। मई में आवर्स रिक्वायर्ड ज्यादा है, गारंटीड कम है, तो मिनिमम गारंटी हमारी पूरी हो रही है। ऊपर के जो आवर्स हैं वो भी हम पे करेंगे और उसके लिए वही नॉर्मल रेट है, तो 2300 आवर्स विल बी पेड एट 10। देखिए मिनिमम हमने 1500 का वादा किया है, अगर लेबर इससे ज्यादा काम करती है तो हम ज्यादा पे करेंगे। जून में 1450 आवर्स रिक्वायर्ड है, 1500 is a guaranteed, so we have to pay the minimum and multiply by 10, your labor cost is 15,000। तो यहाँ से आपको लेबर कॉस्ट भी पता लग गई, लेबर बजट बन गया, and that labor cost will be transferred to the cost of goods sold budget or cost of goods manufactured budget, और ये फिर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। लेबर में इन्वेंट्रीज नहीं होती, like there is no beginning inventory, there is no closing inventory, so वो वाली एडजस्टमेंट जो मटेरियल के बजट में आप करते हैं, एड एंडिंग लेस बिगनिंग, वो लेबर के बजट में नहीं होती। Then the very next budget is manufacturing overhead budget. Manufacturing overhead budget provides a schedule of all costs of production other than direct material and direct labor. So you know that manufacturing overhead is a pool of all indirect expenses. So it comprises indirect material and indirect labor and other indirect expenses. Now definitely before we prepare manufacturing budget, हमारे पास कोई extra information होगी। वो extra information कहाँ से आ रही है? क्वेश्चन में से आ रही है, यहाँ पे रिप्रोड्यूस की जा रही है। और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि कंपनी का जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट है वो 1 पर यूनिट है और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 50,000 के हैं, जिसमें से 20,000 के नॉन कैश fixed manufacturing overheads हैं, which is primarily depreciation of plant assets. So basically we are given data of variable and fixed manufacturing overheads. Now we have to put this in a format in order to find total manufacturing overhead. The format is very simple, starting with the production, because production will determine how many units will be produced, and the rate, variable rate, is 1 per unit. So you have to multiply variable rate with the production units, so that will give you variable manufacturing overheads. तो जब आप units को variable rate से multiply करेंगे, that will give you variable manufacturing overheads. इसमें आप फिक्स जमा कर लेंगे, that will give you total manufacturing overheads. ठीक है? So manufacturing overhead budget in a sense is very simple. You will just add variable overheads with the fixed overheads. अब आपको total overheads पता लग गए, तो ये जो total manufacturing overheads हैं, ये आपके production budget, ये आपके cost of production निकालने में चले जाएंगे। Like अगर हम ये चीज देख रहे हैं कि एक यूनिट कितने का बना,
तो हमें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट ऐड करनी है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट ऐड करनी है, हमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऐड करने हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पे हो रहे होंगे जब हम कैश बजट बनाएंगे, तो वो उसके लिए आप 20,000 के नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। तो आपने देखा होगा कि पीछे आपको नॉन कैश एक्सपेंसेस दिए हुए थे, तो बेसिकली डेप्रिसिएशन जितनी भी शामिल होगी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में वो नॉन कैश होगी। तो आपका एक्सपेंस तो ज्यादा है, क्योंकि एक्सपेंस में आप कैश नॉन कैश की डिस्टिंक्शन नहीं करते। एक्सपेंस के बारे में तो वो मैचिंग प्रिंसिपल है दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड irrespective of the fact whether they are paid or not. So depreciation is an expense, but in terms of payment depreciation is not a payment. So अगर आप expense से payment निकालना चाहते हैं तो you have to deduct the non-cash expenses. तो जब हम cash budget बनाएंगे तो we'll only take 56,000 payment in terms of manufacturing overheads, but जब हम production cost निकालेंगे we will take 76,000 manufacturing expenses. तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद now we are in a position that we can calculate the cost of finished goods. तो अब हम एक यूनिट कितने का बना है इस चीज को डिटरमिन कर सकते हैं, because we are done with the material budget, we are done with the labor budget, and we are done with the manufacturing overhead budget. So now we are in a position to calculate per unit cost, and that per unit cost we can multiply with the units of ending stock ताकि हमें ending inventory पता लग जाए. And that per unit cost we can multiply with the number of units sold ताकि हमें cost of goods sold पता लग जाए. So now we are in a position to determine the cost of goods sold and the cost of ending inventory. अगर हमें एक यूनिट की कॉस्ट पता लग जाए तो नजीब का क्वेश्चन है, अगर डेप्रिसिएशन नॉन कैश ना हो तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है ना कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश ना हो. डेप्रिसिएशन तो होती ही नॉन कैश है. लाइक टेल मी any way where depreciation can be a cash item. The depreciation is always non-cash item. So in order to do this, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि रॉयल कंपनी, क्योंकि अभी हमें ये तो पता करना पड़ेगा फिर भी कि ओवरहेड्स को हमने किस तरीके से एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि ओवरहेड्स के एब्जॉर्प्शन के कई तरीके होते हैं. तो यहाँ पे in a question we are provided with the information that this company manufacturing overhead is applied to units of product on the basis of direct labor hours. यानी कि हमने overheads apply किए हैं on the basis of direct labor hours. So based on that, what we will do is we will calculate the per unit cost. अच्छा, अब per unit cost के लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी. डायरेक्ट मटेरियल की एक यूनिट की क्वांटिटी दी हुई थी जिसको आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी कह लो, और एक यूनिट की कॉस्ट क्या है वो दी हुई थी. तो आई गेस दैट वाज 0.4. तो आपके पास एक यूनिट पे लगने वाला मटेरियल आ रहा है. आप इसको यूं भी कर सकते थे, अदरवाइज जितना डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आपने मटेरियल बजट में निकाला है उसको डिवाइड कर दो प्रोडक्शन क्वांटिटी पे. ठीक है, तब भी आपके पास 2 ही आना चाहिए. बट सबसे आसान तरीका है, क्वेश्चन में ये बताया हुआ था कि एक मटेरियल पे कितने केजीज लगते हैं और एक केजी कितने का आता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. क्वेश्चन में ये भी बताया हुआ था कि एक यूनिट पे कितने आवर्स लगते हैं और एक आवर का रेट क्या है, तो एक यूनिट पे लगने वाली लेबर कॉस्ट भी आ जाएगी. अब प्रॉब्लम होता है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का. तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमने पूरे पीरियड के लेने होते हैं. अब अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के बजट में, तो आप यहाँ पे देखो कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स टोटल कितने हैं. So you have manufacturing overheads of 2,51,000 for the entire period for April, May, June. और प्रोडक्शन कितनी है इंटायर पीरियड की? 1,01,000.
तो अच्छा, प्रोडक्शन यहाँ पे मैटर नहीं करेगी क्योंकि उसने हमें ये कहा है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को अप्लाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो डायरेक्ट लेबर आवर्स की चाहिए होगी। तो मैं ज़रा पीछे जाता हूँ और डायरेक्ट लेबर आवर्स देखता हूँ कितने हैं। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं 5050, राइट। तो अब आप क्या करोगे, आप टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को जो कि 2,51,000 है, डिवाइड कर दोगे 5050 पे। So if I divide 2,51,000 by 5050, तो यहाँ पे जो एक रेट आता है वो 49.70 आता है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने 50 लिया हुआ है, आई गेस ये राउंड ऑफ करके लिया हुआ है। राउंड ऑफ करना तो नहीं चाहिए, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे इन्होंने जरूर राउंड ऑफ किया हुआ है, लेकिन आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें 0.05 से। So 49.7 times 0.5, 0.05, so that is 2.485, और फिर उस 485 को राउंड ऑफ किया हुआ है 29 पे। सो राउंड ऑफ को फिलहाल आप इग्नोर करें। तो दिस इज द कैलकुलेशन। क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लिए हैं टोटल फॉर द पीरियड, बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, उसको बजटेड लेबर आवर्स पे डिवाइड किया है। बोथ फिगर्स वर अवेलेबल फ्रॉम प्रीवियस बजट्स। तो हमें एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पता लग गया है। इस ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को फिर हमने लेबर आवर्स की बेस पे, क्योंकि एक यूनिट पे 0.05 आवर्स लगते हैं, हमने मल्टीप्लाई करके जो एक यूनिट पे लगने वाले ओवरहेड्स हैं वो निकाल लिए। तो जब आप इस सारे को प्लस करेंगे तो दैट बिकम्स 4.99, जिसे राउंड ऑफ करके इन्होंने फिर 5 लिख दिया है, दैट शुड बी 4.99। तो अब हमारे कितने यूनिट सेल हुए थे, तो अगर हम सेल्स की इंफॉर्मेशन देख लें, सेल्स की इंफॉर्मेशन, तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं। सो आई एम गोइंग बैक टू द सेल्स बजट। सो बजटेड सेल्स हमारी 1 लाख थी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दूं 4.99 से, दैट विल गिव मी कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स would be 100,000 times 4.99, so that would be 4,99,000। और एंडिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, 5,000 यूनिट्स बचे में एंडिंग स्टॉक के, टाइम्स 4.99, एंडिंग स्टॉक की वैल्यू होगी 24,950। सो बाय नाउ हमें सेल्स पता लग गई, हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स पता लग गई, हमें एंडिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का पता लग गया। तो नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट तक की जो कैलकुलेशंस हैं वो अब हम कर चुके हैं थ्रू दीज बजट्स। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्विकली पूछ ले, बट बी क्विक प्लीज। सो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपके सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। सो नाउ वी आर प्रिपेयरिंग सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बजट। सेलिंग और एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस बजट बिल्कुल उसी तरीके से बनते हैं जिस तरीके से आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट बनता है। आपको क्वेश्चन में वो वेरिएबल सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस दे देगा। अब सिर्फ फर्क ये है कि वेरिएबल सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस पर यूनिट सोल्ड होते हैं, जबकि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 0.5 विद द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, you have to multiply 0.5 with units sold. So you have to be careful कि आप इसको किससे multiply कर रहे हैं। So you are provided with selling and admin expenses variable and you are provided with fixed, और उसी में फिर बताया हुआ है कि fixed में 10,000 non cash है, which is primarily depreciation। अगेन उसी तरीके से आप एक
बजट बनाओगे, बट दिस टाइम यू विल टेक बजट सेल्स, यू विल नॉट टेक बजट प्रोडक्शन। अब आप बजट सेल्स लोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे वेरिएबल पर यूनिट से, आपके पास वेरिएबल सेलिंग एडमिन आ जाएंगे। उस वेरिएबल सेलिंग एडमिन में आप फिक्स जमा करोगे तो आपके पास टोटल सेलिंग एडमिन आ जाएंगे। नाउ दिस इज अ फिगर व्हिच विल गो टू द इनकम स्टेटमेंट। बट जब आप पेमेंट्स लोगे, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग कैश बजट, so you have to deduct non-cash expenses, and that will then give you the payment of selling and admin expenses जो cash budget में जाएगी। You see there are two different things जो हम budget से निकाल रहे हैं साथ साथ, बल्कि तीन चीजें हमें बजट से साथ साथ निकाल लेनी चाहिए। मैं एक दो बजट जो पीछे करवाए हैं उसमें मैं साथ साथ कैश को नहीं डिस्कस कर रहा था, क्योंकि वहां पे मैंने कैश को एंड में डिस्कस करना है। पर जब आप एक बजट बना रहे होते हैं तो वो आपको मास्टर बजट से रिलेटेड कोई ना कोई चीज बता रहा होता है। मास्टर बजट में चूंकि इनकम स्टेटमेंट है, तो आपको उस बजट से ये देखना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा। दूसरा, मास्टर बजट में कैश बजट है, तो आपको ये देखना चाहिए कि जो बजट आप बना रहे हैं उससे क्या चीज कैश बजट में जाएगी। और तीसरा, चूंकि बैलेंस शीट है, तो आपको ये देखना चाहिए कि जो बजट आप बना रहे हैं उससे बैलेंस शीट में क्या जाएगा। अब आपको पता है कि सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस तो बैलेंस शीट में नहीं जा सकते एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो ये फिगर जाएंगी, और जब हम कैश बजट बना रहे होंगे तो ये फिगर जाएंगी। अब कई बजट्स ऐसे होते हैं जिसमें बैलेंस शीट का भी कोई ना कोई आइटम आपको पता लग जाता है। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ बजट, सो यू हैव टू लुक इनटू दिस पॉइंट कि जी इस बजट को जो हमने कैलकुलेट किया है तो इसमें से कौन सी फिगर कहाँ जाएगी, because eventually we have to prepare that bigger budget, we have to prepare a summary, we have to prepare a master budget। तो हमने यहीं से फिगर्स उठा के वहां लेके जानी है। अच्छा, now we are in a position to prepare our first master budget, that is very important budget। एक बजट जो सबसे ज्यादा एग्जामिन होता है किसी भी एग्जाम में बजटिंग के चैप्टर में से, तो वो कैश बजट ही होता है। so whatever exam you are attempting, this is the most frequently asked question from this chapter। Cash budget is simply a budget of cash। इसके चार sections होते हैं, receipt section, disbursement section, cash excess or deficiency section and financing section। apart from balances तो इसके होंगे ही होंगे, like opening closing balance तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा क्या होगा, receipts कहाँ कहाँ से आ रही हैं, लाइक सेल की है तो रिसीट आ रही है, कैश सेल से पैसे आ रहे हैं, रिसीवेबल से पैसे आ रहे हैं, कोई डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, रिसीट्स। फिर डिस्बर्समेंट्स, पेमेंट टू सप्लायर्स, कैश परचेजेस, आपने को फर्नीचर खरीदा है, कोई बिल पे किया है, ओवरहेड्स पे किए हैं, सो ऑल दिस डिस्बर्समेंट विल बी शोन इन दैट बजट। और जब रिसीट्स में से पेमेंट माइनस करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सेस और डेफिशिएंसी। तो किसी भी पीरियड में considering your receipts and payments, either you could have excess, आपके पास surplus है, or you have a deficiency। तो उस सरप्लस को कहाँ इन्वेस्ट करना है और उस डेफिशिएंसी के लिए बोरिंग कहाँ से करनी है, वो फिर फाइनेंसिंग सेक्शन में हम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो चार मेजर सेक्शंस होते हैं कैश बजट के। अब इस बजट को हम प्रैक्टिकल फॉर्म में देखते हैं, लाइक ये बजट किस तरीके से शो होता है, फॉर्मेट क्या है, और उसके लिए हमें मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए, और मजीद इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। दिस इज कमिंग फ्रॉम द डाटा ऑफ द क्वेश्चन, जो डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन चल रहा है रॉयल कंपनी वाला। तो मजीद इंफॉर्मेशन यानी कि अपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस बजट जो सारे हमने बनाए हैं, हम अब तक सेल्स, प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सेलिंग, एडमिन, ये सारे बजट्स बना चुके हैं। उन बजट्स के अंदर जो कैश की इंफॉर्मेशन है उसके अलावा आपको मजीद जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये है। नंबर 1, the company maintains a 16% open line of credit for 75,000 pounds। कंपनी के पास एक ओपन लाइन ऑफ क्रेडिट है, they can borrow any time up to 75,000 at the rate of 16% interest।
इसका मतलब है जब भी इस कंपनी को डेफिशिएंसी होगी तो उस डेफिशिएंसी को मीट करने के लिए इनके पास एक क्रेडिट लाइन मौजूद है ऑलरेडी। नंबर 2, द कंपनी मेंटेन्स अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 30,000। अब ये इनकी कैश पॉलिसी है। कैश पॉलिसी में कितना कैश होल्ड करना है वो आता है। लाइक आप कैश ना होल्ड करना चाहें ना होल्ड करें, कम होल्ड करना चाहें कम होल्ड करें, ज्यादा होल्ड करना चाहें ज्यादा होल्ड करें। There are so many reasons why companies hold cash. Speculative reasons होती हैं, operational reasons होती हैं, contingency reasons होती हैं. There are so many reasons why companies hold cash. Like there are so many reasons why companies hold inventory. तो ये आपको एक पॉलिसी मैटर बताया गया कि कंपनी चाहती है कि एंड में 30,000 पाउंड भी बचे हुए हों हर महीने के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में कंपनी को 20,000 पाउंड की डेफिशिएंसी है तो वो 20,000 पाउंड बोरो नहीं करेगी, बल्कि वो 20,000 पाउंड डेफिशिएंसी वाले भी बोरो करेगी और 30,000 पाउंड जो एंड में रखना चाहती है वो भी बोरो करेगी। तो टोटल बोरिंग वुड बी 50,000। So at the time of financing, at the time of preparing the financing section, you have to consider this minimum cash balance. इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर उसके बाद एक assumption लिखी हुई है नंबर 3 में। assumption ये है कि कंपनी बोरो करती है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ और रीपे करती है ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। अब प्रैक्टिकली जो मर्जी हो रहा हो, रियलिटी में जो मर्जी हो रहा हो, कंपनी 15 जनवरी को लोन ले और 27 फरवरी को वापस कर दे, बट वी विल अज्यूम दैट द लोन इज टेकन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ जिसमें लोन लिया गया एंड लोन इज रीपेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ जिसमें लोन रीपे गया, ताकि आप फुल मंथ काउंट करें एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। सो ये एक assumption है जो उसने यहाँ पे बता दी है। फिर उसके बाद कुछ पेमेंट की इंफॉर्मेशन है जो अप्रैल में हो रही है, कुछ पेमेंट की इंफॉर्मेशन है जो मई में हो रही है, कुछ पेमेंट की इंफॉर्मेशन है जो जून में हो रही है, और बिगिनिंग कैश बैलेंस। So this is the extra information provided in the question related to cash budget other than the information जो already हम dig out कर चुके हैं while preparing several budgets. So this is now the format of cash budget. अब इसको जरा गौर से समझिएगा। स्टार्टिंग विद बिगिनिंग कैश बैलेंस, वी हैव अ बिगिनिंग कैश बैलेंस एंड दैट वाज गिवन। अभी पिछली स्लाइड में जो आखिरी फिगर थी दैट वाज बिगिनिंग कैश बैलेंस। इसमें क्या ऐड करना है? इसमें रिसीट्स ऐड करनी है। आपको बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और वो रिसीट्स का है। अब ये रिसीट्स कैसे आ रही हैं ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर उसके बाद आपने डिस्बर्समेंट्स माइनस करनी है। इन डिस्बर्समेंट्स में मटेरियल की डिस्बर्समेंट्स आ रही हैं, ये भी दिखा देता हूँ। लेबर की आ रही हैं, ये दिखा देता हूँ। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की आ रही हैं, ये दिखा देता हूँ। सेलिंग की आ रही है, ये दिखा देता हूँ। ये मैंने इसलिए का दिखा देता हूँ क्योंकि इन तमाम पेमेंट्स का ताल्लुक और इन तमाम रिसीट्स का ताल्लुक पिछले बजट से है। तो अभी पिछले बजट्स में हम चलते हैं और वहां से कैश की इंफॉर्मेशन एक दफा दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि वही सारी कैश की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कैश की इंफॉर्मेशन होती है वो कैश कलेक्शंस होती हैं। तो कैश कलेक्शंस कहाँ से आ रही होंगी? सेल्स बजट से। तो अब आई एम गोइंग बैक और सेल्स बजट पे जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे हमने बजट सेल्स तो निकाली थी, तो बजटेड कैश कलेक्शन कहाँ से कैसे आएगी? तो ये हमारी बजटेड सेल्स थी 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, which was just a multiplier of units and price. अच्छा, अब इन सेल से जब हमने कलेक्शंस निकालनी होती हैं तो हमें फिर मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए। वी कैन नॉट extract cash collections from sales unless we have additional information, क्योंकि जब तक हमें कोई ये नहीं बताएगा कि ये सेल्स कैश पे थी या क्रेडिट पे थी, और अगर क्रेडिट सेल्स थी तो हमारी क्रेडिट टर्म्स क्या थी और हमारा कलेक्शन का पैटर्न पिछले सालों का क्या रहा,
तब तक हम कैश की कलेक्शंस नहीं निकाल सकते। अगर तो ऐसा होता है कि सारी की सारी सेल्स उसी मंथ में कलेक्ट हो जाती हैं, तो फिर तो बहुत आसान बात है, आप उसी मंथ में कैश रिसीव ले लें। अगर ऐसा होता है कि सारी की सारी सेल्स अगले मंथ में कलेक्ट होती हैं, तो तब भी बहुत आसान बात है, आप अगले मंथ में ले लें। तो व्हाट इज द पैटर्न? हमें कैश की जो कलेक्शन है वो किस पैटर्न में एक्सपेक्टेड है। नाउ कैश की कलेक्शन किस पैटर्न में एक्सपेक्टेड है, इसका ताल्लुक किस चीज से है कि पास्ट में हमें कैश किस तरीके से कलेक्ट होता रहा है। आपको पता है आवर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज बेस्ड ऑन आवर पास्ट ट्रेंड्स। तो जो पास्ट ट्रेंड होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट हेल्प्स अस इन फोरकास्टिंग फ्यूचर। तो फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इसी पे बिल्ड हो रही होती हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में वो पैटर्न बता दिया जाए, पास्ट वाला ट्रेंड बता दिया जाए कि हमें कलेक्शन इस तरह होती हैं, तो वही एक्सपेक्टेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, एंड एवरी क्वेश्चन विल गिव यू सम यूनिक काइंड ऑफ पैटर्न। तो इस बजटिंग के क्वेश्चंस में और खास तौर पे कैश कलेक्शंस निकालते वक्त जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती करता है या उसको जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो पैटर्न को अंडरस्टैंड करना और अप्लाई करना उसको प्रॉब्लम करता है। क्योंकि क्वेश्चंस यूनिक यूनिक पैटर्न्स ले आते हैं, उसमें डिस्काउंट भी डाल देते हैं, लैंग्वेज भाषा का स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। तो आपने इस पैटर्न को बड़ा केयरफुली समझना है, अगर ना समझ आ रही हो तो मेरे से पूछ लेना है। सो पैटर्न क्या है कि 70% सेल इज कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सेल। जिस मंथ में जितनी सेल हो रही है 70% उसी मंथ में कलेक्ट होगी। 25% उससे अगले मंथ में होगी, लाइक जनवरी की सेल्स का 25% उससे अगले मंथ में होगा, या अप्रैल की सेल्स का 25% मई में होगा, और 5% अनकलेक्टेबल है। और फिर उसने बताया हुआ कि हमारे पास डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस, जो जो बिगिनिंग बैलेंस है वो 30,000 है। बिगिनिंग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो बजट है उसका जो टाइम लाइन है वो अप्रैल टू जून है। तो अगर वो आपको मार्च का बैलेंस बता रहा है तो ये बिगिनिंग बैलेंस है। और वो इसलिए भी बता रहा है कि उसने फिर ये कहा कि दैट विल बी कलेक्टेड इन फुल। तो जो मार्च में अनकलेक्टेबल है दैट विल बी कलेक्टेड इन फुल, तो इसका मतलब है ये कलेक्शन कहाँ पे आ रही होगी, अप्रैल में। तो इस इंफॉर्मेशन को आपने अंडरस्टैंड करते हुए इनकॉर्पोरेट करनी है और एक छोटा सा टेबल बना लेना है जिसको हम कहेंगे एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस। तो इस टेबल में हमने अपने तीनों मंथ्स की एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस लिखनी है, स्टार्टिंग विद जो हमारा बिगिनिंग बैलेंस था मार्च में, जो मार्च में कलेक्ट होने से रह गया था, तो वो कलेक्ट कहाँ होगा, अप्रैल में होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अपनी आसानी के लिए जो अप्रैल मई और जून की सेल्स थी वो लिख रहा हूँ। अप्रैल मई और जून की जो सेल्स थी वो लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें अब ये बताया जा रहा है कि अप्रैल की सेल्स का 70% उसी मंथ में कलेक्ट हो जाएगा। यानी कि जिस मंथ में जो सेल होती है उसका 70% उसी मंथ में कलेक्ट हो जाएगा, और उसका 25% अगले मंथ में कलेक्ट होगा। तो आप देखें कि अप्रैल की सेल्स को हमने दो पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, 70% अप्रैल में लिया और 25% मई में लिया। फिर इसी तरीके से मई की सेल्स का 70% मई में लिया और मई की सेल्स का 25% हमने जून में ले लिया। फिर इसी तरीके से जून की सेल्स का 70% हमने जून में लिया और जून की सेल्स का 25% हम नहीं लेंगे, ये अनकलेक्टेबल रह जाएगा और यही हमारा एंडिंग रिसीवेबल है। तो अगर मैं 3 लाख को 25% से मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट विल बी कलेक्टेड इन जुलाई। इसका मतलब ये हुआ कि एट पीरियड एंड दिस इज आवर एंडिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल। ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। तो जो टोटल कलेक्शन है अप्रैल मई जून की, ये कहाँ जाएंगी, कैश बजट में जाएंगी। अब अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो वो पूछ ले, अदरवाइज मैं यहाँ से कैश बजट पे चला जाऊंगा।
Okay, I guess there is no question. So कैश कलेक्शंस यहाँ से आ गई। उसके बाद जब हमने मटेरियल बजट बनाया था तो मटेरियल कितना खरीदना है ये हमें पता लग गया था। तो जितना आपने मटेरियल खरीदना है उतनी आपने पेमेंट्स भी करनी है। लेकिन पेमेंट्स का पैटर्न क्या है कि आप सारी की सारी पेमेंट उसी मंथ में कर देते हो। अगर तो सारी पेमेंट्स उसी मंथ में कर देते हो तो यही आपकी पेमेंट्स है मटेरियल रिलेटेड। लेकिन अगर आप मटेरियल की पेमेंट्स कुछ डिफरेंट पैटर्न के साथ करते हो, लाइक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/2 of the month purchases are paid for in the month of purchase and the other half is paid in the following month. So we are paying for purchases over 2 months period, 50% in the month of purchase and 50% next month. तो यहाँ पे भी आपको इस पैटर्न को अप्लाई करना पड़ेगा। जितनी भी आपकी परचेजेस है, अगेन मैं इसको नोट कर लेता हूँ। परचेजेस, अच्छा परचेजेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स 1,40,000 है, लेकिन आपको पता है कि इस क्वेश्चन में 1 पाउंड की जो कॉस्ट थी वो 0.4 थी। तो अगर आप परचेजेस को इन टर्म्स ऑफ वैल्यू निकालेंगे तो वो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन टॉप। वो वैल्यू बन रही थी 56,000 फॉर अप्रैल, 88,600 फॉर मई एंड 56,800 फॉर जून। तो ये मटेरियल बजट से हमारे पास परचेजेस की वैल्यू बन रही थी। अब उसने कहा 50% परचेजेस आर पेड फॉर इन द मंथ ऑफ परचेज, 50% नेक्स्ट मंथ, 50% paid in the month of purchase, 50% next month, 50% paid in the month of purchase, 50% next month। ये जो next month है वो हमारा अकाउंट पेएबल है। सो अब इस बजट से और जो हमारा बिगिनिंग अकाउंट पेएबल था वो हमारा पेड हो जाएगा। तो इस बजट से हमें ये पता लगा कि 40,000 मटेरियल पेमेंट्स आर मेड इन दी April, 72,000 in May and 72,700 in June। सो हमें मटेरियल की पेमेंट्स भी पता लग गई, 40, 72,300 एंड 72,700। लेबर की पेमेंट्स हमने पहले निकाल ली थी, 15,000 लेबर कॉस्ट है। अच्छा यहाँ पे भी लेबर कॉस्ट का वर्ड यूज हो रहा है। नॉर्मली लेबर इज पेड इन द सेम मंथ, तो आप सेम मंथ में लेबर की पेमेंट्स ले लेंगे। अगर आपको कुछ नहीं बताया हुआ तो आप यही एज्यूम करेंगे, और अगर आपको बताया हुआ कि लेबर इज पेड नेक्स्ट मंथ तो आप इस मंथ की पेमेंट नेक्स्ट मंथ में ले लेंगे। सो द पॉइंट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। अब जब हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट बना रहे थे तो हमने यहाँ पे कैश पेमेंट्स खुद ही देखी थी साथ ही। ये तो आज ही मैंने आपको करवाया, तो कैश पेमेंट्स हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट में देखी थी जब हमने नॉन कैश एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया था। इसी तरीके से जब हमने सेलिंग और एडमिन का बजट बनाया था तो वहां पे भी हमने उसकी कैश पेमेंट्स देखी थी। तो अब अगर मैं उस बजट पे दोबारा आ जाऊं तो वो जो मैंने क्वेश्चन मार्क्स लिखे थे यहाँ पे, नाउ दैट शुड मेक सेंस टू यू। तो अब इसको हम यूं कहते हैं कि 40,000 हमारा बिगिनिंग कैश बैलेंस है। सो जस्ट फोकस ऑन अप्रैल। 1,70,000 कैश कलेक्शंस है। ये कहाँ से आ रही हैं? वो जो एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस का भी आपको टेबल मैंने समझाया, ये वहां से आ रही हैं। टोटल कैश अवेलेबल हमारे पास 2,10,000 है। मटेरियल रिलेटेड पेमेंट्स 40,000 है मटेरियल बजट से। लेबर रिलेटेड पेमेंट्स 15,000 है लेबर बजट से। 56,000 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रिलेटेड पेमेंट्स है, अभी आपको बजट दिखाया था। और 70,000 सेलिंग और एडमिन की पेमेंट्स है, अभी आपको बजट दिखाया था। सो मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स हियर are coming from the previous budget. Majority of the items here are coming from previous budgets. That's why मैंने आपको बताया था कि मास्टर बजट इज अ समरी। तो अगर हम पिछले बजट स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स टू सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस बना चुके हैं, तो बेसिकली अब तो हमने उनकी कंप्यूटेशंस को समराइज करना है 3 बजट्स में। कुछ चीजें कैश बजट में आ जाएंगी, कुछ चीजें इनकम स्टेटमेंट में आ जाएंगी, कुछ चीजें बैलेंस शीट में आ जाएंगी।
So now we are preparing a summary and that summary is called master budget. तो ये आपने देखा कि ये सारी चीजें अब तक ये पिछले बजट से ही आ रही हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन में जो उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि डिविडेंड्स पे हो रहे हैं अप्रैल में, इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं मई में, फिर जून में, तो जो पेमेंट्स उसने बाद में हमें बताई थी क्वेश्चन में, हमने उन पेमेंट्स को भी इस बजट में इंसर्ट कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद ये सारी चीजें डालने के बाद अब एक छोटा सा पॉइंट आप गौर से देखिएगा कि हमारे पास कैश अवेलेबल में से जब हम कैश डिस्बर्समेंट्स निकालते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सेस और डेफिशिएंसी। तो अप्रैल में देखिएगा कि 210 का कैश अवेलेबल था और 230 की हमने पेमेंट्स की हैं। सो हमारे पास यहाँ पे डेफिशिएंसी है 20,000 की। पेमेंट्स आर ग्रेटर देन दी कैश अवेलेबल। इसके बाद आपको बताया गया था कि आपने फाइनेंसिंग सेक्शन बनाना है। तो फाइनेंसिंग सेक्शन ऐसे होता है, तो ये अगला पेज है, बेसिकली इसमें डेफिशिएंसी दोबारा शो की गई है। तो फाइनेंसिंग सेक्शन ऐसे होता है कि अब हम कितना बोरो करें, ये कितना बोरो करना चाहिए, हम ये कितना बोरो करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि कंपनी की पॉलिसी है, क्वेश्चन में बताया हुआ था कि 30,000 एंड में कैश का बैलेंस रखना है। तो अगर हम 30,000 बैलेंस रखना चाहते हैं और 20,000 की डेफिशिएंसी है तो हमारी बोरिंग यहाँ पे 50,000 की होगी। तो ये बोरिंग उसने खुद नहीं बताई हुई थी, बट यू हैव टू calculate this looking into your deficiency and your minimum cash balance that is required at the end. अब ये जो एंडिंग कैश बैलेंस है ये अगले पीरियड का बिगिनिंग कैश बैलेंस बन जाएगा। तो कोई अगर ये पूछता कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, तो बेसिकली पिछले पीरियड का जो एंडिंग बैलेंस है वो अगले पीरियड का बिगिनिंग बैलेंस है। फिर हमने देखा तो हमारे पास अगले पीरियड में कैश अवेलेबल 4,30,000 था और हमारी डिस्बर्समेंट 4 लाख की थी। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेस है 30,000 का। लेकिन बात ये है कि इस एक्सेस का हम क्या करें, क्योंकि हमने तो 30,000 का बैलेंस भी मेंटेन रखना है। तो ये तो बस इतना ही है जितना हमारा एंडिंग बैलेंस होना चाहिए। तो हम ना तो मजीद बोरो करेंगे, ना लोन हम रीपे करने की कंडीशन में है। तो इसलिए यही एंडिंग बैलेंस फिर अगले पीरियड का बिगनिंग बैलेंस बन जाएगा, यहाँ पे जून का। फिर अगले पीरियड में जो कैश अवेलेबल है उसे देखेंगे, जो पेमेंट्स करनी है उसे देखेंगे। फिर हमारे पास एक्सेस है 95,000 का। तो ये एक्सेस अलबत्ता इतना है कि हमारा 30,000 का बैलेंस रखा भी जाए तो 65,000 बचते हैं। तो 65,000 का मतलब है हम ये लोन रीपे कर सकते हैं। तो नाउ फाइनेंसिंग सेक्शन में आप इस लोन को रीपे करोगे, ना सिर्फ इसको पे करोगे बल्कि इस पे जो 16% का इंटरेस्ट है वो भी पे करोगे। और वो जो 16% का इंटरेस्ट है वो 3 माह का लोगे बेस्ड ऑन द असम्पशन कि लोन इज टेकन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ एंड पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो 50,000 रीपे कर दिया, 2,000 इंटरेस्ट है। आफ्टर दीज पेमेंट स्टिल आपके पास 43,000 है। कंडीशन ये थी कि कम से कम 30,000 होना चाहिए, तो ये उससे ज्यादा है तो दैट्स फाइन। तो ये जो आखिरी बैलेंस है 43,000 का, ये अब आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा एंडिंग बैलेंस। और वो जो पहला बैलेंस है अप्रैल का, ये आपका बैलेंस शीट, अच्छा बैलेंस शीट में तो खैर एंडिंग बैलेंस जाते हैं तो इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं है। तो फाइनली जो बैलेंस शीट में आप बैलेंस लिख रहे होगे वो 43,000 का है। So I will stop here for a minute so that if you have any question you can ask me at the right time. So from this point onward, now we have to move to the budget profit statement. Now budget profit statement is again a summary. अभी हमें कुछ भी नहीं करना, बल्कि जो कुछ हमने ऑलरेडी किया हुआ है बस वही इस स्टेटमेंट में आएगा। कैसे आएगा? सेल्स बजट से हमारे पास सेल्स की फिगर आ रही होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स हम निकाल चुके हैं, ग्रॉस मार्जिन हमें पता है,
सेलिंग एडमिन का जो टोटल है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट 3 माह की बन रही है, तो 3 माह के टोटल्स आएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 241,000 का, अभी इंटरेस्ट पे किया था 2,000, वो माइनस कर दें तो आपका जो प्रॉफिट है पूरे पीरियड का वो 2,39,000 है। सो इट्स जस्ट अ समरी। ऑल द फिगर्स मेंशन्ड इन दैट समरी वो पिछले बजट्स में हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं। अब आपने सिर्फ उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। So this is a summary. So this is the easiest budget statement to prepare because we have to summarize all the items. Finally, we have to prepare budgeted balance sheet. अब budgeted balance sheet के लिए कुछ डेटा तो वहीं से आएगा जो अब तक हम चीजें कैलकुलेट करते आ रहे हैं, लाइक हमारे पास रिसीवेबल क्रेडिट आएगा, पेएबल क्रेडिट आएगा, इन्वेंट्री क्रेडिट आएगा, कैश क्रेडिट आएगा, बहुत सारी चीजें वहीं से आ रही हैं। लेकिन अब ऑब्वियसली हमारे पास इक्विटी क्या थी, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहरहाल अभी भी हमें क्वेश्चन में बताई जाएंगी, तो हम पूरी बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो अगेन आपका क्वेश्चन का जो डेटा है वो आपको बता रहा है कि साल के एंड में आपका लैंड का ये बैलेंस है, बिल्डिंग का ये बैलेंस है, कॉमन स्टॉक ये है, रिटेन अर्निंग ये है। तो ये उन्होंने आपको बता दी है। बाकी कुछ चीजें हमारे बजट से हमें खुद पता होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे ये जो कैश की फिगर है 43,000 करंट एसेट्स में, ये हमारे कैश बजट से आ रही है। ये जो डेटर्स की फिगर है ये हमारे कैश कलेक्शंस में से जो कलेक्शन रह गई थी वो वाली फिगर है। रॉ मटेरियल स्टॉक जो एंड में स्टॉक रह गया था ये वो फिगर है। फिनिश गुड स्टॉक जो एंड में फिनिश गुड्स रह गए थे ये वो फिगर है। ये सारी फिगर करंट एसेट्स की हमारे पिछले बजट से आ रही है। ठीक है, आपके साथ इनकी वर्किंग्स भी शो हुई हुई है। उसके बाद लैंड उसने खुद बताई, लैंड उसने खुद बताई है। अभी बिल्डिंग क्वेश्चन में थी, इक्विपमेंट भी, अच्छा नहीं, मेरे ख्याल में लैंड और बिल्डिंग अभी उसने खुद बताई है। इक्विपमेंट क्वेश्चन में था कि हमने खरीदा है इसी मई और जून में, उसका टोटल आ गया। सो टोटल नॉन करंट एसेट्स भी आ गया, टोटल एसेट्स आ गए। क्रेडिटर्स हमें क्वेश्चन पिछले बजट में से मिलेगा, जब हम मटेरियल की पेमेंट्स कर रहे थे तो अकाउंट पेबल जो रह गया था। कॉमन स्टॉक उसने खुद बता दिया है, और रिटेन अर्निंग कुछ उसने बताई हुई है यहाँ पे। रिटेन अर्निंग इसमें जो फिर हमारा मजीद प्रॉफिट हुआ था, कितना हुआ था, 239,000 का। तो इसमें 239,000 की रिटेन वो प्रॉफिट जमा करके हम जो है, और डिविडेंड्स माइनस करके जो बकिया रिटेन अर्निंग्स है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारी बैलेंस शीट भी बराबर हो जाएगी। तो बेसिकली ये बनाना तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, इन अ सेंस कि जब आपके पास ये सारे बैलेंस आ जाते हैं तो इट्स नॉट हार्ड कि आप ये बना सकें। यू हैव टू जस्ट सम देम अप। ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर आपने लेजर्स बना लिए हैं, ट्रायल बैलेंस आपके पास है, तो उससे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना मुश्किल नहीं है। सिर्फ एडजस्टमेंट्स करना मुश्किल होता है, बट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना मुश्किल नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस इज जस्ट अ समरी। तो ये चैप्टर रीडिंग्स हैं। चैप्टर मैं आपको बता चुका हूँ, गैरिसन का जो एडिशन हम फॉलो कर रहे हैं उसके चैप्टर 9 है। ये कुछ दूसरे एडिशंस हैं और उन बुक्स के रेफरेंसेस हैं। You can go through these books, and that's it. If you have any question, let me know. This conference will now be recorded. अभी जो हमने सारा प्रोसेस मैनुअली किया, the whole process can be performed through Excel, and obviously the biggest benefit of using a software for preparing the budget is automation. तो चूंकि ये बजट एक दूसरे से लिंक्ड है तो बहुत सारी रेपिटेशन से हम बच जाते हैं। अगर हमारे पास एक टेम्पलेट है, बजट टेम्पलेट एक्सेल में बना हुआ, तो दैट टेम्पलेट हेल्प्स अस इन कैलकुलेटिंग सो मेनी थिंग्स ऑटोमेटिकली, और वो जो समरीज हैं वो भी ऑटोमेटिकली बन जाती है। लाइक इन फ्रंट ऑफ यू आई हैव वन बजट टेम्पलेट। सो अब मिसाल के तौर पे इधर हमें क्या इंसर्ट करना है, तो लेट्स से जो क्वेश्चन का डेटा है, अगर मैं इसमें
इंसर्ट करूं तो लेट्स से मैं इस क्वेश्चन के डेटा को एक साइड पे लेता हूं और यहाँ पे इस एक्सेल के टेम्पलेट को दूसरी साइड पे लेता हूं, तो आप देखो कि बजट के डेटे में क्या लिखा हुआ है कि बजट यूनिट्स अप्रैल के 20,000 है, सो आई एम राइटिंग हियर 20,000 and selling price is 10, so I'm writing here 10, so it automatically calculates the total sales. Obviously इसमें formula लगा हुआ है my 50,000 and then you put 10 here, it gives you total sales of my, and इसके बाद June 30,000 times 10 and that gives you the total sales of June, एंड ऑटोमेटिकली इसने पूरे क्वार्टर की सेल्स का टोटल भी कर लिया। ना सिर्फ ये बल्कि इसने यहाँ से इस क्वार्टर की सेल्स को ऑटोमेटिकली बजट प्रॉफिट लॉस में भी डाल दिया और तमाम उन जगहों पे डाल दिए जहाँ पे इसको होना चाहिए था। मिसाल के तौर पे जब सेल्स बजट के बाद प्रोडक्शन बजट बनता है तो हमें सबसे पहले यही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि बजट सेल्स के यूनिट्स कितने हैं। ये एक्सेल शीट आप तक कनेक्टेड है ये सारी की सारी, और ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली पोस्ट हो रही है तमाम रेलेवेंट जगहों पे। अब इससे हमने कलेक्शन निकालनी है, तो कलेक्शन निकालने के लिए हमें सिर्फ ये बताना है कि हमारा जो लास्ट मंथ का बैलेंस है जो डेटर्स का वो क्या है। तो क्वेश्चन में बताया हुआ 30,000 है, तो लेट्स से यहाँ पे मैं 30,000 लिख देता हूँ। उसके बाद मुझे ये बताना है कि हमारा पैटर्न क्या है। तो हमारा पैटर्न ये है कि 70% जो है वो कलेक्ट होता है इन दी मंथ ऑफ सेल और 30% कलेक्ट होता है इन दी मंथ फॉलोइंग सेल्स। तो ऑटोमेटिकली इसने वो पैटर्न अप्लाई करके मुझे कैश कलेक्शंस बता दी हैं और ये कैश कलेक्शंस ऑटोमेटिकली जा चुकी होंगी हमारे कैश बजट में। So you see the advantage of using a software, a very simple thing like Excel, तो ये हमें कैश बजट में लेके जा चुका है तमाम वैल्यूज को। So this is so much programmed। हाँ, ये और बात है कि इसको प्रोग्राम करना और इसको इस टेम्पलेट्स को बनाना और उसके अंदर ये चीजें इस तरीके से लेके आना कि आपकी नीड्स पूरी हो, दिस रिक्वायर्ड सम एफर्ट, बट वंस यू आर डन विद दिस एफर्ट तो यू कैन प्रिपेयर बजट एवरी ईयर बाय सिंपल पुटिंग डाटा इनटू दीज शीट्स। तो एक सिंपल क्लिक ऑफ बटन पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। प्रोडक्शन बजट बना लिया, अब इसके अंदर कुछ चीजें हमने बतानी है और वो ये है कि बिगिनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, तो हमें क्वेश्चन में पता 4,000 थी, और डिजायर्ड एंडिंग भी आपको उसको बताना है कि डिजायर्ड एंडिंग स्टॉक कितना था, तो डिजायर्ड एंडिंग 20% था। तो जैसे ही मैंने ये चीजें इसको बताई तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे कैलकुलेशंस करके दे दी। तो बस इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं जस्ट एक चाह रहा था कि आपके साथ ये वाला एस्पेक्ट भी डिस्कस हो जाए, दैट यू कैन डू द होल प्रोसेस through Excel. So budgeting through Excel. So for that you need to have Excel templates of all the budgets, all the functional budgets, and then from those templates automatically आपके पास एंड में ये चीज़ें खुद ब खुद ही कैलकुलेट होना शुरू हो जाती हैं। तो आप देखें कुछ फिगर कैश की अब तक आ चुकी है, कुछ फिगर डेटर्स की अब तक आ चुकी है, और ऑटोमेटिकली जैसे जैसे बजट बनते जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ये पॉपुलेट होता जाएगा और आपका मास्टर बजट इन दी एंड खुद ब खुद ही बन जाएगा।